Potential energy is defined as potential energy is defined as potential energy is defined as energy possessed by a body or system. System मतलब कई बार एक से ज्यादा body भी हो सकती है. Energy possessed by a body or system by virtue of its position or configuration. By virtue of its position or configuration. For example, gravitational potential energy. Gravitational potential energy of a body due to some gravitational field or electric potential energy. Gravitational potential energy due to some gravitational field or electric potential energy or energy stored in a spring or energy stored in a spring or energy stored in a spring or energy stored in a spring. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो बिकॉज हमने जो पढ़ना अभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो अगले साल आएगी स्प्रिंग वाली इसी चैप्टर में ड्राइव करेंगे. So you can write next paragraph में gravitational potential energy of a mass is energy possessed by the body in gravitational field of earth. Energy possessed by the body in gravitational field of earth. Mathematically, if earth is assumed to be the reference level, रिपीट करना है. energy possessed by the body due to gravitational field of earth. Mathematically, if surface of earth is assumed to be the reference level, mathematically, if surface of earth is assumed to be the reference level, then work done against gravitational force, work done against gravitational force to move the body from surface of earth to height h, to move the body from surface of earth to height h, will be stored in the form of gravitational potential energy. कि हमारे पास एक बॉडी है जो इनिशियली सरफेस ऑफ अर्थ पे बढ़ी है, बॉडी ऑफ mass m and it's placed on the surface of earth. So हमारा रेफरेंस लेवल हो गया h is equals to 0. इसको यहाँ से हाइट h पे लेके जाना है. तो work done by applied force will be equals to potential energy. अगर mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो हम लेंगे कि हमें एटलीस्ट mg, अगेन मतलब क्रिटिकल केस की mg हम लिखते हैं कि एटलीस्ट mg,
पर mg से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये ऊपर जा सके। तो हम उसको mg के इक्वल ही लेके चलते हैं कि इसको जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना है। तो डाउनवर्ड फोर्स अगर mg, अपवर्ड फोर्स भी mg, इसको इस पॉइंट तक लेके आने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जीरो एक्सेलरेशन क्यों? व्हाई आई एम सेइंग कि इसको जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर लाना है, कि बहुत धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। सर फोर्स ऑफ बैलेंस। अगर हम एक्सेलरेशन से लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो दो जगह स्प्लिट हो जाएगा। A part of work done is used to increase the potential energy and remaining will be given to the body in the form of its kinetic energy. Because अगर acceleration होगी तो उसकी velocity बढ़ेगी ना, तो ग्राउंड पे वेलोसिटी जीरो, ऊपर तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी वर्क डन किया है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में जाए। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर लेके आना। सो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं। सो ग्राउंड को पॉइंट ए मान लो, सो ए से बी तक लेके आना। सर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दो। क्लियर नहीं आ रही आज भी इमेज? नो सर। Yes, sir, blurred है. 305693, 305693. So you can write as shown in the figure, as shown in the figure, a body of mass m is to be moved from ground to height h with zero acceleration, with zero acceleration. Therefore, external force exerted should be equal to external force exerted should be equal to the gravitational force mg acting downwards. External force should be equal to gravitational force acting downwards, and external force should act in upward direction. And external force should act in upward direction. Bracket में reason लिख लो. The body is moved with zero acceleration because otherwise it will acquire some kinetic energy also. When it moves from A to B. Otherwise, it will acquire some kinetic energy also when it moves from A to B. Work done by external force. Fa is mg and displacement is h. Therefore,
मैं अगर आपसे बोलूं मेरे पास एक बॉडी है ऑफ मास 5 kg, इसको मैंने ग्राउंड से 10 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाना है, वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ग्राउंड पे अगर 0 है तो इसको ग्राउंड से 10 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाना है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कितने जूल्स? सिंपल से शुरू कर दो। 5 into 10 raised to मान लो 5. मास 5 kg है और हाइट 10 मीटर है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 500. इधर कितनी? 10 kilometers is how many meters? 10 raised to 4. So 5 into 10 raised to power 5. अगर मैं बोलूँ मास 5 kg है, h 100 किलोमीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 5 into 10 raised to 6. ये ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, ये ज्यादा गलत है। सर जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब जैसे हाइट। हमने FAS लिया, FA को हमने लिया mg। सबसे पहले ये फॉर्मूला FA.S कब लगता है? व्हेन फोर्स एक्टिंग कॉन्स्टेंट। Force is constant. पर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी g कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे g की वैल्यू और माउंट एवरेस्ट पे g की वैल्यू अलग अलग होती है, यस सर। तो इसलिए लार्ज हाइट्स के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, ये स्मॉल हाइट्स के लिए। 10 20 40 50 मीटर तक आप लगा लो, किलोमीटर्स में जब चली जाएगी तो एरर आना शुरू हो जाएगा इसमें, बिकॉज हाइट 10 है तो थोड़ा कम एरर है। हाइट 100 कर दी तो एरर बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन में 1000 कर दी तो और बढ़ जाएगा। सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, इसको नीचे नोट में लिख लो। You can write a note below this. As this formula is derived, as this formula is derived by assuming, as this formula is derived by assuming that g remains constant, as this formula is derived with assumption that g remains constant, therefore it can be used, therefore it can be used only for small heights, therefore it can be used only for small heights. If the height is in kilometers, if the height is in kilometers, g becomes variable and gravitational force is variable. G becomes variable and gravitational force becomes variable. Therefore, we cannot use the above relation. Therefore, we cannot use the above relation. Second point लिखो. Mathematically, work done by applied force
Mathematically, work done by applied force is equal to change in potential energy. Mathematically, work done by applied force is equal to change in potential energy. Therefore, if work done is positive, potential energy will increase, and if work done is negative, potential energy will decrease. And if work done is negative, potential energy will decrease. Bracket में लिखो applied force here implies the force applied force here implies the force applied against the conservative force. Thus, you can say work done against conservative force. Work against conservative force is equals to delta U. Work against conservative force is delta U. Next point लिखो. Similarly, if work done is calculated for the conservative force, then work done by conservative forces negative of change in potential energy. Work done by conservative forces negative of change in potential energy. This implies that if work done by conservative force is negative, potential energy will increase, and if work done by conservative force is positive, potential energy will decrease. And if work done by conservative force is positive, potential energy will increase. The decrease. If work done by conservative force is positive, potential energy will decrease. Next is law of conservation of mechanical energy. Conservation of law की जगह लिख लो conservation of mechanical energy for body sliding down inclined plane. Conservation of energy for body sliding down inclined plane.
मेरे पास ये इंक्लाइन प्लेन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान रहा हूँ तो हमने शो करना है कि कोई 3 पॉइंट्स अगर मैंने ले लिए ए बी एंड सी, इन तीनों पे टोटल एनर्जी सेम होगी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट विल कम आउट टू बी सेम। तो अगर मैंने बॉडी को टॉप से रिलीज किया, मैंने इसको टॉप से रिलीज किया, तो अगर मैं ए पॉइंट से रिलीज करता हूँ किसी बॉडी को जिसका मास m है, यहाँ पे ये रेस्ट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू सरफेस इज mgh और काइनेटिक 0। जब ये इस पॉइंट पे आएगी, वेयर इट्स हाइट इज से मान लो कुछ भी से h1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? और ये मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, जब वो सी पॉइंट पे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और बॉडी की वेलोसिटी अगर v2 है तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv2 स्क्वायर। हमने बेसिकली शो करना है कि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है, इधर काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इधर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, इधर सिर्फ काइनेटिक है। हमने शो करना है इन तीनों की टोटल वैल्यू सेम आएगी, तो उसके लिए आपको v1 और v2 निकालना पड़ेगा। अगर ये h1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा a से d तक, ये हाइट कितनी है? H minus H1. ठीक है, a से b तक मैंने डिस्टेंस ले लिया, लेट इट बी SAB। इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या होगी? g sin G sin g sin theta. थीटा। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g sin थीटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड SAB। हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। सिमिलरली जब आप a से c लोगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा? a से c लेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिकम्स सर वो उसकी पूरी लेंथ। so let it be SAC। एक्सेलरेशन अभी भी g sin थीटा, तो हम v2 भी निकाल सकते हैं। तो हम शो कर देंगे कि इन दोनों को ऐड करके और इधर v2 की वैल्यू पुट करके टोटल एनर्जी mgh के इक्वल ही आएगी जो इनिशियल एनर्जी थी। सो दैट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लाइज कि जितनी पोटेंशियल कम होगी काइनेटिक उतनी बढ़ेगी, सो दैट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। सो डायग्राम बना लो, फिर उसको प्रूव करते हैं। स्कूल के लिए है, ऐसी चीजें कंपटीशन में कभी नहीं आती। मतलब कंपटीशन में कंसेप्ट पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, बट नोबडी विल आस्क यू द प्रूफ कि इसको प्रूव करो। एक्सक्यूज सो मी ड्रॉ सर, द डायग्राम देन वी विल डू। यस, सर हम इसमें बाकी सारी एनर्जीज निगलेक्ट कर रहे हैं। बाकी सारी कौन सी? सर एक जैसे अगर फ्रिक्शन होगी तो वो सरफेस पे फ्रिक्शन तो होगी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके सर। अगर मैंने फ्रिक्शन ले ली तो फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं कर सकता। फिर डायग्राम बड़ा कर दूं। डायग्राम बड़ा कर दूं?
ए से बी डिस्टेंस लिया एस ए बी एंड ए से सी एस ए सी. Conservation of energy on an inclined plane. Conservation of energy on an inclined plane implies that total mechanical energy, that is sum of total mechanical energy, that is the sum of kinetic and potential energy. That is the sum of kinetic and potential energy of the body is constant as it slides down the inclined plane. As shown in the figure, a body of mass m is released from point A on a frictionless surface of inclination angle theta. अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए पे? 0. 0. Initial kinetic energy at A, because initially speed 0 है. Potential energy at point A, mgh. total energy at A is mgh. इन दोनों को ऐड कर देंगे. Total energy is mgh. इसके बाद हम A से B देखते हैं. Initial velocity at A is 0. Acceleration on inclined plane is g sin theta. Displacement कितनी है? SAB. तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी बतानी है यूजिंग v square is equals to u square plus 2as. वेलोसिटी एट b मैंने ली थी डायग्राम में v1. तो v1 square is 0 square plus 2 into g sin theta into SAB. अब डायग्राम दोबारा से देखो. ये है h1, ये h minus h1, ये SAB. आपने बनाया हुआ है डायग्राम. ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल होगा इस ट्रायंगल में? साइन थीटा h minus h1 upon h minus h1 upon SAB. तो साइन थीटा इज
एस ए बी इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? H minus H1. H माइनस एच वन, तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर जी एच माइनस एच वन। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी होगी? हाफ एम वी वन स्क्वायर हमने निकाल लिया, Mg into H minus H1. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मतलब एम जी एच माइनस एच वन। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसकी हाइट एच वन है, MgH1. Mg H1. एम जी एच वन। UB is mgh1, this is kb। टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो MgH. Mgh. kb plus ub और यू गेट mgh eb। मतलब a और b पे हमने एनर्जी सेम प्रूव कर दी, a पे भी यही थी mgh, अब हमने c पे निकालनी है कि c पे भी सेम एनर्जी होगी। फॉर पॉइंट c कंसिडर मोशन फ्रॉम a to c। a to c लें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है a पे? 0. 0। एक्सेलरेशन इज G sin theta. G sin theta. and displacement is SAC. SAC। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 + 2 × G sin थीटा × SAC। अब सेम वे में दोबारा से देख लो, ये SAC, ये H, ये थीटा, तो sin थीटा इज H upon sin theta. H upon SAC, H upon SAC, so SAC sin थीटा इज H। काइनेटिक एनर्जी एट C कितनी हो गई? Mgh. पोटेंशियल एनर्जी एट C 0. तो टोटल एनर्जी इज mgh। समझ में आया कैसे किया? कि आपने तीनों जगह पे शो कर देना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो mgh ही है। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ, तो काइनेमैटिक्स का यूज किया है मैंने बेसिकली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे करो 2s इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए। इसमें देख लो कुछ नहीं आ रहा समझ तो, अदरवाइज इट्स अ बेसिक आर्टिकल स्कूल के लिए। अदरवाइज इसको नोट कर लो पूरा। नोट हो जाए तो बताना, देन वी विल डू द नेक्स्ट आर्टिकल।
न्यूमेरिकल्स करेंगे 2-3. You can write a numerical. A bullet leaving. So wait. So please wait. Done, sir. So you can write a bullet leaving a rifle barrel. A bullet leaving a rifle barrel with a velocity v penetrates and loses 1/5 of its velocity. के बाद क्या था? A bullet leaving the barrel of a rifle with velocity v penetrates a plank and loses 1/5 of its velocity. It then strikes a second plank which it just penetrates through, Find the ratio of thickness of the planks by assuming that average resistance in penetration is same for both the cases. Assuming that Average resistance in penetration is same for both the cases. मान लो ये 2 प्लैंक्स हैं, हमें T1 और T2 की रेशियो बतानी है. वी आर गिवन दैट एक बुलेट यहां से आती है एंड इट लूजेस 1/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो यहां से जब बाहर निकलेगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1/5 लूज कर दी तो 4/5 भी, बिकॉज हमें डेल्टा वी दिया है. दिस इज v/5. तो इनिशियल वेलोसिटी अगर v है तो फाइनल विल बी 4v/5. फिर हमें कहा कि वो सेकेंड प्लैंक में गई एंड जस्ट पेनिट्रेट्स थ्रू. इसका मतलब क्या होता है जस्ट पेनिट्रेट्स थ्रू? मतलब पूरा अंदर तक नहीं गई मतलब जब वो इसमें से बाहर निकली तो उसकी वेलोसिटी 0 थी. जस्ट पेनिट्रेट ही कर पाई है, उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं बची. दैट व्हाट इट मीन बाय जस्ट पेनिट्रेट्स थ्रू. तो यहां से जब एंटर की थी वेलोसिटी थी 4/5v
यहाँ पे 0 होगी फाइनल वेलोसिटी। तो हमें बताना है इन दोनों की थिकनेस की रेशियो क्या है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द टू प्लैंक्स। इसका क्या मतलब है कि एवरेज रेजिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ द प्लैंक्स। आप दो वे में मान सकते हो इसको। या तो आप कह लो कि जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है प्लैंक के बुलेट के ऊपर, दैट इज सेम, और यू कैन से रिटार्डेशन दोनों के लिए सेम है, कि जो रिटार्डेशन इस प्लैंक में होगी वही इस प्लैंक में है। रिटार्डेशन इज सेम। रिटार्डिंग फोर्स और रिटार्डेशन इज सेम। अब मेरे को पहले ये बताओ, इसको मैं टोटली काइनेमैटिक से कर सकता हूँ, बट मेरे को वर्क पावर से करना है। मैं इसको काइनेमैटिक से कर सकता था। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन सेम है तो S1 निकाल लिया, फिर इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन A तो हमने S2 निकाल लिया यूजिंग द फॉर्मूला v² - u² / 2a। एक तो वो मेथड हो गया। पर अगर मैं वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट लगाऊं, यहां से जब बुलेट एंटर की उसकी वेलोसिटी थी v, जब बाहर निकली तो 4/5v। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है? बढ़ रही है, कम हो रही है? पहले तो सर कम हो रही है। कम हो रही है। फाइनल इज हाफ m इंटू 4/5v का स्क्वायर। यही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes. This becomes 9/25। इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है सेकेंड प्लैंक में? फाइनल वेलोसिटी 0, ये कैलकुलेशन देखो, समझ में आ रही है जो मैंने की है? ठीक है, ये वैल्यूज फर्स्ट प्लैंक में वर्क डन कितना? रिटार्डिंग फोर्स अगर F है, डिस्प्लेसमेंट T1 है, तो वर्क डन इज Ft1। सेकेंड प्लैंक में वर्क डन Ft2, and work done is equals to change in kinetic energy. So thickness की जो ratio है that is 9:16. T1/T2 is 9:16. समझ में आया क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी पता थी, फाइनल पता थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² - u²। फाइनल वेलोसिटी इज 4/5v, इनिशियल इज v। इधर फाइनल इज 0, इनिशियल इज 4/5v। तो दोनों में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, ये फर्स्ट प्लैंक का, ये सेकंड प्लैंक का। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको अप्लाई कर दिया। इसको देखो, किसी को नहीं समझ आ रहा तो एनी डाउट इन दिस सर आपने कंसेप्ट में? हाँ जी, क्यों लिया? क्या नहीं आया समझ बेटा? सर वो दिन आपने वर्क एनर्जी थ्योरम यही होती है ना। हमने जब डेरिवेशन की थी काइनेटिक एनर्जी की, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, बट अगर u से भी इंटीग्रेट करते तो यही फॉर्मूला आता, वर्क डन इज हाफ mv² - हाफ mu²। नो सर माइनस Ft1 आई एम टॉकिंग माइनस अबाउट Ft1 क्यों लिया? जो रेजिस्टिव दैट। फोर्स यस है सर वो नेगेटिव वेलोसिटी साइन। की डायरेक्शन में एक्ट करती है, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट। रेजिस्टिव फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है या उसके ऑपोजिट होती है? ऑपोजिट।
तो फिर फोर्स और Opposite. डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 Yes, sir. और नेगेटिव बिकॉज एफ Negative. इज ठीक cos है. 180. नेक्स्ट राइट, ये आ गया समझ सबको? An object, next लिखो, an object of mass 5 kg, an object of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance of 20 meter and reaches the ground with speed of 10 meter per second. How much work is done by air resistance on the object? How much work is done by air resistance on the object? हमें दिया 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, तो जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी. हमने बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस. कैसे करें? एनी आइडिया? वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन दो हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ग्रेविटी का वर्क डन mgh, रेजिस्टिव फोर्स का हमने निकालना है. अब हमें डेटा क्या दिया है? मास हमें दिया है 5 kg, h हमारे को दिया है 20, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u 0 and v is 10 meter per second. So 5 into 10 into 20 plus WR so you can say work done by resistive forces is minus 750 joules. Work done by resistive forces minus 750 joules. Next is
particle of mass 0.5 kg, particle of mass 0.5 kg travels in a straight line with a velocity v is equals to alpha x raised to power 3 by 2 with velocity v is equal to alpha x raised to power 3 by 2 where alpha is 5. Find work done by the force. तो वो नेटवर्क कनेक्शन भी Find work done by the force to displace from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. हमें दिया एक बॉडी पे फोर्स एक कर दिया एंड उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज अल्फा एक्स रेज टू पावर 3 by 2. Can you please repeat last line? Work done to move from work done बताना है to move from x is equal to 0 to x is equal to 2. Alpha is given as 5. फिर और डाटा जो दिया वो भी रिपीट कर दो नेटवर्क भी मास दिया बस 0.5 kg. सेम कंसेप्ट लगा दो. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज x 0 है. फाइनल वेलोसिटी निकाल लो and find the change in kinetic energy. Mass is given 0.5 kg. इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत. x is equal to 0 पे वेलोसिटी 0 है. x is equal to 2 पे वेलोसिटी निकालो. फिर वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. क्या है आंसर? Sir, 50 joules. 0.502. half mv square minus half mu square.
So work done is 50 joules. क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक बॉडी है, which is placed on top of the building of height 5 meter. पोटेंशियल एनर्जी एट बी बतानी है कितनी है. Find potential energy at B. क्या आएगा आंसर? सर रेफरेंस लेवल दिया नहीं. फिर कोई भी हो सकती है. So all four are correct. जब तक हमें रेफरेंस लेवल नहीं दिया, हम पोटेंशियल एनर्जी की कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं. पॉजिटिव में लिखें, नेगेटिव में लिखें. तो ऐसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे? बिकॉज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की होती है. वो रेफरेंस लेवल आप कुछ भी लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी. इसको नोट में लिख लो इसके नीचे रेड पेन से, ताकि आपको याद रहे ये कंसेप्ट. कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी और अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल. Potential energy of a body or a system depends on reference level, but change in potential energy is always independent of the reference level chosen. Change in potential energy is independent of the reference level chosen. So क्योंकि numericals में change in depends upon potential energy depends on reference level, but change in potential energy is independent of the reference level chosen. So reference level कुछ भी choose कर लो, change in potential energy same ही आती है. Potential energy reference level पे depend करती है, और physics के numerical में change ही चाहिए होता है, potential energy की absolute value नहीं चाहिए होती. So अगली बार ही करते हैं इसके आगे. ये बात पढ़ के देख लेना, relatively easy chapter है ये. तो एक असाइनमेंट सेंड करूंगा मैं कल, और कल मॉर्निंग में या दोपहर तक, और मंडे तक करनी होगी तो आराम से कर लेना संडे को. टेस्ट मैं बता दूंगा संडे रखना है या नहीं. मेरे को शायद बाहर जाना है, तो शायद आपकी मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन छुट्टी भी हो, तो मैं वो बता दूंगा आपको संडे को या मंडे मॉर्निंग मैसेज करके. चैप्टर कौन सा होगा वैसे टॉपिक टेस्ट? टेस्ट अगर हुआ तो लॉस का ही होगा, या इसका भी ले सकता हूँ, जितना पार्ट हो गया इसका बता दूंगा. मतलब अभी आप इसकी थ्योरी पे फोकस करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत काम आएगा आगे ये वाला चैप्टर. बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते जाओ.